Respected headmaster, respected dear colleagues and dear students, I welcome you all with the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know that we are going to organize a quiz competition. For that, we have been able to provide you syllabus earlier, and this quiz competition will be according to that syllabus which was provided to you. For that, we have been already made 4 groups: Group A, Group B, Group C and Group D. In Group A, we have Munazza Bashir, Munazza Yusuf, we have Ifshana Rashid, we have Shiba Hassan and Raisa Yusuf. In Group B, we have Saqib Mehraj, Khushbu Riyaz, Diba Shafi and Zia Manzoor. Very good. And in Group C, we have Shaista Ramzan, Rutba Mehraj, Said Munazim and Adnan Rafi. In Group D, we have Sheikh Sudais, Said Hasib, we have Saqib Shafi and Mantasha Ajaz Noor. These are our 4 groups. So today's this quiz competition comprises of 6 rounds, and in each round each group will be asked 2 questions. Each question carries 10 marks. That means if a group A is able to answer both the questions, they will score 20 marks. And Group B in the first round will also be asked 2 questions of equal marks. Group C will be also asked 2 questions of equal marks, and Group D will be asked these questions of equal marks. Then there will be second round, and second round is our mathematics. First round, which we say is our science round. Second is our mathematics round. Third is our this English round. Fourth is Urdu round. Fifth is social science round, and sixth round is sports round. There will be 6 rounds, where in each round 2 questions will be asked to each and every team. You will be given 1 minute. After listening the question, we will provide you 1 minute to answer that question. If you succeed in giving the appropriate answer in 1 minute, you will score 10 marks, and if you can't, you will score 0 marks. So I think you all are now ready. You might have heard what are the rules, how many rounds we are going to have today. So are you ready? Shall we start with the permission of headmaster? If head permits, we are going to start the round first. So with the permission of our headmaster, we are going to start the round first. Mr. Shiraz Saab is going to just note down the marks that each group will score. So Group 1, we will not start from Group A directly. We will ask the question to Group 4. Okay, Group 4 will be asked the first question, that is Group D. So first question that goes to Group D is, it is in the science round. You will listen this question very
eagerly and we will give ears to me after doing the discussion and concentrating on the question, and also properly listening to all the options I will provide you. Then and then you have to give appropriate correct answer to the question. You have 1 minute at your disposal after I will say your time starts now. So राउंड फर्स्ट ग्रुप ए के लिए सवाल है, आराम से सुने, मैं ऑप्शंस भी बताऊंगा और जब मैं बोलूंगा आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, उसके बाद से आपको आंसर देना है। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप जब से ज़्यादा 2 पॉसिबल आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि पहला आंसर ठीक नहीं है तो आप दूसरा दे सकते हैं विद इन मिनट्स। सिर्फ 2 ही आंसर आप दे सकते हैं। अगर आपने तीसरा आंसर दिया तो कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ग्रुप ए के लिए पहला सवाल है, द फोर्स exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is called। फोर्स जो एक चार्जड बॉडी दूसरे चार्जड बॉडी पे लगाती है या किसी दूसरे अनचार्जड बॉडी पे लगाती है, उस फोर्स को कहते हैं ऑप्शन ए मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं सवाल एक बार फिर से रिपीट करूंगा। द फोर्स exerted by a charged body on another charged body or on uncharged body is called option A muscular force, magnetic force B option, C option electromagnetic force and option D gravitational force। वो फोर्स जो एक चार्जड बॉडी दूसरी चार्जड या अनचार्जड बॉडी पे लगाती है, क्या उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 40 सेकंड्स आपके लिए बाकी है। आप और अगर कोई चाहते हो कि इसमें मैं दूसरा नाम बोलूं, क्योंकि 1 मिनट से पहले हम आंसर नहीं बोलेंगे। तो ग्रुप ए के लिए दूसरा क्वेश्चन, द डॉग लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ। कुत्ता जो है वो किस दुनिया में रहता है? हियर, स्मेल, टेस्ट, टच। क्या वो हियर सुनने की दुनिया में रहता है, स्मेल सूंघने की दुनिया में रहता है, टेस्ट मजे की दुनिया में रहता है या टच फील की दुनिया में रहता है? द डॉग लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हियर, स्मेल, टेस्ट, टच। ये 4 ऑप्शन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्मेल लॉक कर दें इसको? यस सर, लॉक कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है ये, द डॉग लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ स्मेल। आप ग्रुप बी के लिए ग्रुप बी के लिए जो क्वेश्चन है, ग्रुप बी जिसके हेड हैं साकिब महराज, तो पहला क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, बी ऑप्शन नॉन कंटैक्ट फोर्स, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन सी डी contact force। The force acting on a unit area of a surface is called gravitational force, non-contact force, pressure, contact force। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको लॉक करें? करें, कोई बात नहीं, आपके पास अभी टाइम है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नॉन कंटैक्ट फोर्स, ऑप्शन सी प्रेशर, ऑप्शन डी कंटैक्ट फोर्स। लॉक करें प्रेशर को? लॉक करें प्रेशर को। बिल्कुल सही जवाब है, 10 मार्क्स मिलते हैं इनको। ये बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप बी
का जो पहला था उसको 10 मार्क्स मिलते हैं फर्स्ट राउंड को। सेकंड राउंड ग्रुप बी के लिए सवाल सुने। द सेंस ऑर्गन स्किन इज टू टच, ए टच, बी हियर, सी स्मेल, डी टेस्ट। द सेंस ऑर्गन स्किन इज टू ए टच, बी हियर, सी स्मेल, डी टेस्ट। टच, लॉक करें इसको। बिल्कुल सही आंसर है टच। आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। आपका टोटल स्कोर बनता है 20। ग्रुप बी के दोनों क्वेश्चंस हो गए। आप ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी के लिए जो पहला राउंड चल रहा है साइंस राउंड, उसमें 2 क्वेश्चंस हम पूछेंगे। हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। आप क्वेश्चन आराम से सुने। आपने एसिड्स का नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड्स जो हैं या और कोई एसिड्स हैं, जो भी आपने एसिड्स का नाम सुना है, ये क्वेश्चन भी एसिड्स के बारे में है। मैलिक एसिड इज फाउंड इन, मैलिक एसिड किस चीज में पाई जाती है? नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए टोमेटो, बी विनेगर, सी एप्पल, डी मिल्क। मैलिक एसिड किस चीज में पाया जाता है? टोमेटो में, विनेगर में, एप्पल में या मिल्क में? टोमेटो। लॉक करें ऑप्शन को, लॉक करें। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। मैलिक एसिड आप में से कोई बता सकता है किसमें पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। वेरी गुड। तो बिल्कुल नहीं। आप दूसरा राउंड, दूसरा जो क्वेश्चन है राउंड ए का ग्रुप सी के लिए, क्वेश्चन आराम से सुने। ब्लोइंग ऑफ आयर और विंड टू सेपरेट हस्क or lighter and heavier materials is called. Blowing of air or wind to separate husk or lighter and heavier materials is called thrashing, B sieving, C winnowing, D sedimentation. Winnowing. लॉक करें इसको, लॉक करें। बिल्कुल सही जवाब है विनोइंग, बिल्कुल सही जवाब है। तो इनको मिलते हैं 10 मार्क्स। ग्रुप सी को मिलते हैं 10 मार्क्स पहले राउंड में। अब ग्रुप डी के लिए, अब ग्रुप डी के लिए है। अब ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर, सोप, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो क्या लाइव वाटर में पाई जाती है, सोप में पाई जाती है, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन में या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में? सोप। लॉक करें ऑप्शन को। बिल्कुल सही आंसर है, सोप में पाया जाता है। एक और क्वेश्चन है ग्रुप डी के लिए। इफ वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अगर हमारे पास सॉल्ट और वाटर की सॉल्यूशन होगी, वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट को हम वाटर से कैसे अलग कर सकते हैं? सेडिमेंटेशन से, इवापोरेशन से, फिल्ट्रेशन से या डिकेंटेशन से? सेडिमेंटेशन से, इवापोरेशन से, फिल्ट्रेशन से या डिकेंटेशन से? इवापोरेशन। लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है ये, इवापोरेशन से इसको हम कर सकते हैं अलग। ग्रुप डी के लिए भी 20 मार्क्स है। ग्रुप ए के लिए पहले राउंड में 10 मार्क्स हैं। ग्रुप बी ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स, ग्रुप सी ने स्कोर किए हैं 10 मार्क्स और ग्रुप
डी ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स। इस तरह हमारा जो पहला राउंड है साइंस राउंड वो खत्म होता है। तो अब हमारा जो है दूसरा राउंड स्टार्ट हो जाएगा जो मैथमेटिक्स राउंड है। तो मैथमेटिक्स राउंड में भी 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर ग्रुप को और हर क्वेश्चन के 10-10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ग्रुप ए के लिए पहला सवाल, रेडी ग्रुप ए? द अनदर नेम फॉर अर्थमेटिक मीन इज, अनदर नेम फॉर अर्थमेटिक मीन इज रेंज, एवरेज, मीडियन, मूड। अर्थमेटिक मीन का दूसरा नाम क्या है? क्या वो रेंज है, क्या वो एवरेज है, क्या वो मीडियन है या वो मूड है? रेंज। रेंज, इसको लॉक करें। रेंज, एवरेज, मीडियन, मूड। रेंज। रेंज लॉक करें इसको, लॉक कीजिए इसको। क्या जी नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। कोई बोल सकता है इसका सही जवाब क्या है? एवरेज। बिल्कुल सही जवाब इसका एवरेज है। ये बिल्कुल 7th मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्रुप ए के लिए दूसरा क्वेश्चन, 1/2 of 12 mangoes is 1/2 of 12 mangoes is 6, B 4, C 8, D 2। 6 लॉक करें। बिल्कुल सही जवाब है, 1/2 of 12 is 6। तो ग्रुप दूसरे राउंड में ग्रुप ए को मिलते हैं 10 मार्क्स। ग्रुप बी के लिए आप मैथमेटिक्स राउंड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो ग्रुप बी के लिए है, हाउ मेनी 25 पैसा कॉइन विल मेक ए रुपी? कितने 25 पैसे की कॉइन्स 1 रुपया बनाएंगे? 2, B 3, C 4, D 5। सी, बिल्कुल लॉक करें इसको। C4 बिल्कुल सही आंसर है ये। ग्रुप बी को मिलते हैं 10 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट observation is called mean, B average, C range, D median। रेंज लॉक करें इसको, लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है ये। तो इनको मिलते हैं 20 मार्क्स। राउंड बी में इनको मिलते हैं 20 मार्क्स। तो अब ग्रुप सी के लिए है क्वेश्चन मैथमेटिक्स राउंड में। ग्रुप सी के लिए पहला क्वेश्चन है, आई एम exact divisor of a number। I am exact divisor of a number। I am a product, factor, sum, multiple। मैं exact divisor of a number हूं। क्या मैं प्रोडक्ट हूं, फैक्टर हूं, सम हूं या मल्टीपल हूं? प्रोडक्ट, बी फैक्टर, सी सम, डी मल्टीपल। फैक्टर लॉक करें इसको। यस सर, बिल्कुल सही आंसर है ये। 10 मार्क्स मिलते हैं इनको। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप सी के लिए, आई एम ए 4-sided फिगर with opposite sides parallel and all sides equal। I am a 4-sided figure with opposite sides parallel and all sides equal, so I am a kite,
बी रोम्बस, सी रेक्टेंगल, डी स्क्वायर। लॉक करें इसको। बिल्कुल सही आंसर है रोम्बस। इनको मिलते हैं 20 मार्क्स। ग्रुप डी, ग्रुप डी के लिए सवाल है। ग्रुप डी के लिए पहला सवाल, आई एम ए लाइन cutting two parallel lines in the same plane and having the sum of two interior angles equal to 180 degree. So I am a diagonal, transversal, vertex, trapezium. लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है ट्रांसवर्सल इसका। नंबर सेकंड क्वेश्चन, we are two prime numbers. We have only one in common. One means number one, digit one. We are two prime numbers. We have only one in common, and the number divisible by both of us is also divisible by our product. So we are prime numbers, co-prime numbers, integers, composite numbers. जी, हम दो प्राइम नंबर्स हैं, हमारे बीच में सिर्फ वन कॉमन है, और जो जिससे हम दोनों का डिवीजन होता है, हमारे मल्टीपल से भी उसका डिवीजन होता है। क्या हम प्राइम नंबर्स हैं, या को प्राइम नंबर्स हैं, या इंटीजर्स हैं, या कंपोजिट नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स। लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है को प्राइम नंबर्स। तो ग्रुप डी को भी मिलते हैं 10 मार्क्स। राउंड थ्री में जो है हमारा ये इंग्लिश राउंड है, तो इस राउंड में भी दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रुप ए के लिए पहला क्वेश्चन है, द रिंकल्स आर मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रन, एडल्ट्स, ओल्ड एज्ड पीपल, गर्ल्स। लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है, इनको मिलते हैं 10 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, रिमोट मीन्स क्लोज, डिस्टेंट, नियर, अबोव। REMOT, रिमोट मीन्स क्लोज, बी डिस्टेंट, सी नियर, डी अबोव। क्लोज, बी डिस्टेंट, सी नियर, डी अबोव। क्लोज। लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है बी डिस्टेंट। ग्रुप बी ए को मिलते हैं 20 मार्क्स। ग्रुप बी के लिए पहला क्वेश्चन, ग्रुप बी के लिए पहला क्वेश्चन जो है, द अनदर नेम फॉर वेल इज, द अनदर नेम फॉर वेल इज शलवार, दुपट्टा, स्वेटर, फेरन। ग्रुप बी दुपट्टा। लॉक करें इसको। बिल्कुल सही आंसर है दुपट्टा। बिल्कुल सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप बी के लिए, पायरेट्स मीन्स एंजॉयमेंट, पर्सन हु सेल द सी एंड रॉब अदर्स, टेस्ट, फायर। Pirates means A, enjoyment, B, person who sail the sea and rob others, C, taste, D, fire. C, taste. A, enjoyment, B, person who sail the sea and rob the others, B. लॉक करें इसको। बिल्कुल सही आंसर है बी। बिल्कुल सही आंसर। ग्रुप बी को मिलते हैं 20 मार्क्स। अब ग्रुप सी के लिए क्वेश्चन, ग्रुप सी के लिए क्वेश्चन है, द रिंकल्स आर मोस्टली, ग्रुप सी के लिए क्वेश्चन है, मिस्टिक पोइट्री क्रिएटेड बाय लल देद इज कॉल्ड। लल देद से लिया हो गया है। मिस्टिक पोइट्री
created by Lal Ded is called sannyas, B. Waqs, C. Sufism, D. Stanzas. A. Sannyas, B. Waqs, C. Sufism, D. sannyas. वक्स। लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है। ग्रुप सी को मिलते हैं 10 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप सी के लिए है, चॉप्ड मीन्स कट इनटू पीसेस, प्लानड, टेस्टी, मेड ऑफ मड। कट इनटू पीसेस, लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, पिक्चर इज ए पॉट मेड ऑफ आयरन, पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, ए कप, डी पॉट, ए नेट मेड ऑफ क्लॉथ। यूजुअली मेड ऑफ मड, लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है। ग्रुप डी के लिए दूसरा क्वेश्चन है, लाल देद वॉज ए 14th century poet, 15th century poet, 13th century poet, 16th century poet। 14th century poet, लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है 14th century poet। इस तरह जो है ये तीसरा राउंड भी खत्म होता है। अब हमारा सोशल साइंस राउंड है, चौथा राउंड। ग्रुप ए के लिए सवाल है, ग्रुप ए पहला सवाल, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए ड्वार्फ प्लैनेट, मार्स, जुपिटर, प्लेटो, नेपच्यून। मार्स, जुपिटर, प्लेटो, नेपच्यून, कौन सा प्लैनेट है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दिया गया है? मार्स, जुपिटर, प्लेटो, नेपच्यून। मार्स, लॉक करें इसको, तीस सेकंड्स अभी आपके पास हैं। ऑप्शंस फिर से मैं बताता हूं, मार्स, जुपिटर, प्लेटो, नेपच्यून। ड्वार्फ प्लैनेट यानी प्लैनेट के दर्जे से इसको नीचे किया गया है। मार्स, जुपिटर, प्लेटो, नेपच्यून। प्लेटो, लॉक कर दें इसको, बिल्कुल सही आंसर है प्लेटो, बिल्कुल सही आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, सेडिमेंट्री मीन्स ए फायर, बी सेटल डाउन, सी चेंज ऑफ फॉर्म, डी कूलिंग। सेडिमेंट्री का मतलब क्या है? फायर, सेटल डाउन, चेंज ऑफ फॉर्म या कूलिंग। ऑप्शंस हैं फायर, सेटल डाउन, चेंज ऑफ फॉर्म, कूलिंग। लॉक करें इसको, चेंज ऑफ फॉर्म को। बिल्कुल नहीं, ये सही जवाब नहीं है। कोई बोल सकता है इसमें से सेडिमेंट्री का मतलब क्या है? फायर, सेटल डाउन, चेंज ऑफ फॉर्म या कूलिंग? सेटल डाउन। सेटल डाउन, सेडिमेंट्री रॉक्स तो सेडिमेंटेशन का मतलब ही है ना, जो बॉटम में सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, ग्रुप बी के लिए पहला क्वेश्चन है, विच इज अ ब्लू प्लैनेट? विच इज अ ब्लू प्लैनेट? अर्थ, मार्स, वेनस, जुपिटर। अर्थ, लॉक करें, बिल्कुल सही आंसर है, 10 मार्क्स मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्रुप बी के लिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज माग्मा, कोर, मेंटल, क्रस्ट। कोर, लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है। ग्रुप बी को मिलते हैं 20 मार्क्स। ग्रुप सी के लिए क्वेश्चन है,
I cover 30% of total area of Earth's surface. I am a most important natural resource. I am a soil, land, water, sun. लैंड। लॉक करिए इसको, बिल्कुल सही आंसर है। 10 मार्क्स मिलते हैं ग्रुप सी को। ग्रुप सी के लिए दूसरा क्वेश्चन, वी आर शाइनिंग इन नाइट स्काई। वी आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई। वी आर प्लैनेट्स, स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज, meteorites. Planets, stars, celestial bodies, meteorites. स्टार्स। लॉक करें इसको। जी नहीं, ये सही आंसर नहीं है। कोई बोल सकता है इसका सही आंसर? सेलेस्टियल बॉडीज। जी हाँ, बिल्कुल, ये इनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन है, द प्लैनेट known as Earth's twin is Jupiter, Venus, Saturn, Mars. Venus। लॉक करिए इसको, बिल्कुल सही आंसर है। I have exclusive right over an idea or invention. I am a resource, patent, invention, discovery. लॉक करें, बिल्कुल सही आंसर है, ये पेटेंट है। इस तरह से हमारा जो चौथा राउंड है वो खत्म होता है। तो चौथे राउंड के एंड पे जो है, अभी 5वें राउंड के एंड पे आपको हम स्कोर्स बताएंगे। उससे पहले एक ऑडियंस के लिए मैं एक देखता हूं कि ऑडियंस में से अगर इस क्वेश्चन का कोई जवाब दे सकता है। जनरल ऑडियंस के लिए एक क्वेश्चन है, नेम द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल ट्री कौन है? बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बनाना ट्री। बैनियन ट्री बिल्कुल सही जवाब है। बैनियन ट्री कहा जाता है नेशनल ट्री ऑफ इंडिया को। और एक सवाल जो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, ऑडियंस इसका जवाब देंगे। नेम द हाउस मेड ऑफ आइस। आइस से, जो बर्फ से जो हाउस बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हट, इग्लू, टेंट। इग्लू बिल्कुल सही आंसर है, उसको इग्लू कहा जाता है। और भी क्वेश्चंस पूछेंगे जनरल ऑडियंस से, लेकिन पहले हम और एक राउंड स्टार्ट करते हैं। तो शिराज साहब हमें बताएंगे इस बीच स्कोर क्या हुआ है। जो ग्रुप ए है उनका क्या स्कोर हुआ है ये 4 राउंड्स के इख्तिताम पर? 50 हुआ है ए ग्रुप का। ग्रुप ए का स्कोर है 50, तालियां जोरदार। ग्रुप बी का 80, शाबाश, उनके लिए तालियां। ग्रुप सी 60, ग्रुप डी 80। जोरदार तालियां हो जाए सारे ग्रुप्स के लिए। अब उर्दू राउंड है। नेक्स्ट राउंड इज उर्दू राउंड। ग्रुप ए के लिए पहला सवाल है, फरेब का हममानी लफ्ज फरेब जो है आपने सुना होगा, उसका हममानी लफ्ज क्या है? ए धोखा, बी गुरूर, सी रुसवाई, डी बेइल्मी। लफ्ज फरेब का हममानी लफ्ज कौन सा है? ए धोखा, बी गुरूर, सी रुसवाई, डी बेइल्मी। धोखा। लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है, धोखा इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप ए के लिए, डॉक्टर सी.वी. रमन को नोबेल प्राइज किस शोबे में मिला था? अदब, अमन, साइंस फिजिक्स, अद्वियात। फिजिक्स। साइंस में मिला था, फिजिक्स में मिला था, सही आंसर है इसका। बिल्कुल 20 मार्क्स मिलते हैं ग्रुप बी को। ए को माफ कीजिएगा। ग्रुप बी के लिए आप क्वेश्चन है उर्दू राउंड से, लफ्ज कैदी का हम मानी लफ्ज कौन है? लफ्ज कैदी का हम मानी लफ्ज कौन है? ए हामी, बी असीर,
सी फाजल, डी कबाएं। हामी, बी असीर, सी फजल, डी। ग्रुप डी के लिए सवाल है, अमृत्या सेन को नोबेल प्राइज किस शोबे में मिला? अदब, साइंस, इक्तिसादियात, अमन। लिटरेचर में मिला, साइंस में मिला, इकोनॉमिक्स में मिला या पीस में मिला? इक्तिसादियात, बिल्कुल सही आंसर है। ग्रुप डी के लिए दूसरा सवाल, मैं लफ्ज चहल पहल का हम मानी लफ्ज हूं। चहल पहल का हम मानी लफ्ज, यानी चहल पहल का हम मानी लफ्ज आपको बोलना है। गुल, आमद, रौनक, चमन। गुल, आमद, रौनक, चमन, चहल पहल का। गुल, आमद, रौनक, चमन, चहल पहल। गुल, चहल पहल का लफ्ज जो है उसके हम मानी लफ्ज नीचे में से बोलना है, कौन है चहल पहल का हम मानी लफ्ज? गुल, आमद, रौनक, चमन। लॉक करें इसको। चहल पहल का हम मानी लफ्ज, आपके पास बचते हैं 12 सेकंड। रौनक, गुल, आमद, चमन। रौनक, लॉक करें रौनक को, लॉक करें रौनक को, लॉक रौनक को। यह बिल्कुल सही आंसर है रौनक इसका, यह बिल्कुल सही आंसर है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए और जो आपको बोलना है वो लॉक कराएं, ठीक है। हसीब ने सही टाइम पे डिसीजन लिया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है सपोर्ट्स राउंड। नेक्स्ट राउंड है हमारा सपोर्ट्स और ये हमारा फाइनल राउंड है। इससे पहले ऑडियंस से मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। ऑडियंस से क्वेश्चन है, विच कलर सिंबलाइजेस पीस? किस कलर का मतलब है अमन? रेड कलर का मतलब है अमन, व्हाइट कलर का मतलब है अमन, ग्रीन कलर का मतलब है अमन या येलो कलर का मतलब है अमन? व्हाइट, बिल्कुल सही आंसर। व्हाइट कलर का मतलब है अमन। और एक सवाल ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, नेम द लार्जेस्ट मैमल। लार्जेस्ट मैमल का नाम बोलना है। एलिफेंट, जिराफ, ब्लू व्हेल, हिप्पोपोटामस। ब्लू व्हेल, बिल्कुल सही आंसर है। 2000 तालियां हो जाए इनके लिए। अब हमारे पास सपोर्ट्स राउंड है जो हमारा फाइनल राउंड है। तो सपोर्ट्स राउंड ग्रुप ए के लिए पहला सवाल, विच गेम वॉज प्रीवियसली कॉल्ड मिंटोनेट? मिंटोनेटी, किस गेम को मिंटोनेटी कहा जाता था? क्रिकेट, हैंडबॉल, वॉलीबॉल या बैडमिंटन? क्रिकेट, हैंडबॉल, वॉलीबॉल या बैडमिंटन, किस गेम को मिंटोनेटी कहा जाता था पहले जमाने में? बैडमिंटन, लॉक करें इसको। बैडमिंटन को लॉक करें? जी नहीं, ये सही जवाब नहीं है। कोई बोल सकता है किस गेम को मिंटोनेटो कहा जाता था? वॉलीबॉल, वेरी गुड, सही आंसर है इसका वॉलीबॉल। अब ग्रुप बी के लिए क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल क्रिकेट द गेम इज एजुकेटेड बाय हाउ मेनी एम्पायर्स? इंटरनेशनल क्रिकेट गेम में कितने एम्पायर्स होते हैं? ऑप्शन 1 एम्पायर एडेड बाय मैच रेफरी, 2 एम्पायर्स, 1 मैच रेफरी एंड 3rd एम्पायर, 2 एम्पायर्स, मैच रेफरी, सी ऑप्शन 3 एम्पायर्स एंड मैच रेफरी।
3 umpires and match referee. 2 and match referee. लॉक करें जी नहीं, ये सही जवाब। स्पोर्ट्स का जो तीसरा क्वेश्चन है इनके लिए, ग्रुप सी के लिए, हु इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर? हु इज कंसिडर्ड ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर एमंग द फॉलोइंग? ध्यानचंद, लाल शाह बुखारी, कपिल देव, तेंदुलकर। ऑप्शन ए है ध्यानचंद, ऑप्शन बी है लाल शाह बुखारी, ऑप्शन सी है कपिल देव, ऑप्शन डी है तेंदुलकर। ऑप्शन बी लाल शाह बुखारी। लॉक करें इसको, लॉक करें जी नहीं, ये सही आंसर नहीं है। क्या है इसका नाम? ध्यानचंद। उसी के नाम पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता। वसीम सर ने आपको एक बार बोला भी था, ये तो याद रखना चाहिए था उस टाइम। और एक जो राउंड है, राउंड 4 ग्रुप डी के लिए, माफ कीजिएगा, स्पोर्ट्स राउंड में, विच वॉज कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम? नंबर 1 ईस्ट एशियन गेम, नंबर 2 कॉमनवेल्थ गेम, नंबर 3 क्रिकेट, नंबर 4 ओलंपिक गेम। किस गेम को ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था? ईस्ट एम्पायर गेम, कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट, ओलंपिक गेम। विच वॉज प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम? पुराने जमाने में इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। क्या वो ईस्ट एशियन गेम को कहा जाता था, कॉमनवेल्थ गेम को कहा जाता था, क्रिकेट को कहा जाता था, या ओलंपिक गेम को कहा जाता था? क्रिकेट को लॉक करें इसको जी नहीं, ये सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है कॉमनवेल्थ गेम। तो इस तरह से हमारे जो ये राउंड्स हैं ये खत्म होते हैं। हमारे बिल्कुल 6 राउंड खत्म होते हैं। तो मैं शिराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 राउंड के बाद हमें बताएं कि किस टीम का क्या स्कोर है। टीम ए का जो स्कोर है वो है 70, टीम बी का 100 है, टीम बी का 100 है, बिल्कुल 110 में से 100, वेरी गुड। टीम सी का 80, टीम सी का 80, उनके लिए तालियां। टीम डी का भी 100 है। तो इसका मतलब हुआ टीम बी और टीम डी में जो है वो हुआ है टाई। टीम डी में और टीम डी में जो है वो टाई हुआ है। तो हमारे पास टाई राउंड पड़ा हुआ है। तो हम टाई राउंड में से क्वेश्चन पूछेंगे। पहले टीम ए को हम क्वेश्चन पूछते हैं, टीम बी को माफ कीजिएगा। विच कंटेंट इज नोन एज डार्क कंटिनेंट? विच कंटिनेंट इज नोन एज डार्क कंटिनेंट? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। किस कंटिनेंट को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका। लॉक करें, लॉक करें, बिल्कुल सही आंसर है ये, अफ्रीका। अफ्रीका बिल्कुल सही आंसर है। आप अपनी जगह पे बैठे रहें, डोंट आस्क सम क्वेश्चंस। आप देखें, आपके लिए क्वेश्चन है टीम डी के लिए। नेम द शेप दैट हैज 10 साइड्स? हेक्सागन, हेप्टागन, नैनोगन, डेकागन। डिकागन। लॉक करें इसको, बिल्कुल सही आंसर है डिकागन, इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। आप सवाल है टीम ए के लिए, बी के लिए माफ कीजिएगा। हु गेव लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आइंस्टाइन, न्यूटन, एडिसन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? आइंस्टाइन, एडिसन, न्यूटन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया है?
आपके पास अभी भी 20 सेकंड्स हैं, आप सोच के बता सकते हैं कोई भी आंसर जो भी बताना हो। ये 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। न्यूटन, लॉक करें इसको। बिल्कुल सही आंसर है इसाक न्यूटन इसका। आप ग्रुप टी के लिए सवाल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया किस को कहा जाता है? शार्क, स्टारफिश, डॉल्फिन, वेल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया किसको ज्यादा कहा जाता है? वेल को, डॉल्फिन को, शार्क को या स्टारफिश को? शार्क, डॉल्फिन, वेल, स्टारफिश। आप आराम से मशवरा करके जवाब दे सकते हैं, अभी भी आपके पास 30 मिनट हैं। किसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है इंडिया का? स्टारफिश को, डॉल्फिन को, वेल को या शार्क को? है डॉल्फिन, लॉक करें। बिल्कुल सही आंसर है, डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। ये सही बिल्कुल है। शिराज साहब हमें नंबर बताएंगे। मेरे ख्याल से टाई राउंड में ये दोनों टीमों को विनर करार दिए जाएंगे। ये दोनों टीम आप जो है विनर करार पाए जाएंगे, क्योंकि दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है और दोनों टीमों ने सिर्फ 130 में से 120 मार्क्स मिले हैं और जो और दो टीमें हैं वो भी बहुत अच्छा खेली है। टीम ए को मिले हैं इस तरह से 70 मार्क्स और टीम बी को मिले हैं 120 मार्क्स, टीम सी को मिले हैं 80 मार्क्स और टीम डी को मिले हैं 120 मार्क्स। इस तरह टीम बी और टीम डी जो है उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वो आज इस क्विज कंपटीशन के विनर है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सारे बहुत अच्छे खेले और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी आप बहुत अच्छा खेलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।